students, welcome to the MS Engineering College live sessions. Myself Shalini Mittal, working as Assistant Professor in MS Engineering College, is here with you all to conduct this live session on Python programming. Dear student, we all know that this COVID-19 has affected our studies a lot. It's our immense pleasure to present you with our live lectures in this pandemic situation. We MECC wants you all to utilize this time and prepare well for your board exams. So without any delay, let's conduct our Python live session. So students, before starting with our video, I would like to know you that Python programming is a trending one today. What are the reasons for its being a trending language? The reason is it's easy to understand. It has fewer lines of code as compared to other programming languages, and it works in all domains, most of the domains. It can work with GUI, it can work with websites, databases, data science, artificial intelligence, biotech, and many more. So it's a very good choice if you start your career with Python programming, and in your career start you learn Python programming because it is the most demanding one. So let's start with the topics that we are going to cover in this slide. We are going to cover an overview and advantages of Python. We are going to run Python programs. We are going to discuss data types, basic operators, decision making, loops, functions, modules, and file handling. So going with the Python overview, Python overview says that it was first introduced in 1991 by Guido van Rossum, a Dutch computer programmer. It is a high-level interpreted, interactive, and object-oriented scripting language. What do you mean by high-level language? High-level languages are the languages which can be understood by a human as well as computer, as compared to low-level languages which cannot be understood by human. अगर मैं एक programmer हूँ, तो I can understand the syntax of my programming language. Means a human is able to understand what is written. Okay, and computer can also understand it and can change according to its need. Means it can change the program, it can change the instructions as per its need, and human can change that program as per his understanding. For example, अगर कहीं लिखा है print hello, तो जब मैं print hello command देखूंगी तो what I will feel कि अच्छा स्क्रीन पे hello print कराना है. मेरे ह्यूमन माइंड ने समझ लिया ना कि ये सिंटेक्स क्या कह रहा है, एंड कंप्यूटर क्या करेगा, उसने भी देख लिया अच्छा प्रिंट हेलो कह रहा है, तो वो अपने मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देगा. तो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन एज वेल एज कंप्यूटर. ओके, बट व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर एंड नॉट बाय अस. फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा है प्रिंट हेलो, तो अगर वो प्रिंट हेलो कुछ ऐसा लिखा होता है 0100011000, तो क्या मुझको समझ आता? नो. So it's a very good thing that Python is a high level language. Although C, C++, Java, they all are high level language. An example of low level language is assembly language. Okay, it is an interpreted language. How it is an interpreted language? Unlike C program, it don't need any compiler. Interpreter just takes your code and straightforwardly gives your result. Okay, don't waste your time in compiling and creating an object file. So it's a very good thing that it is an only interpreted language. It is an interactive language. Interaction क्या होता है? Interaction होता है कि where we both can communicate with each other. अगर आप कमांड लाइन में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और वहां पाइथन टाइप करेंगे तो आपको एक इंटरेक्टिव कंसोल मिल जाएगी. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड को बोला मुझे कॉफी अच्छी लगती है. उसने कहा ओके. मुझे आइसक्रीम भी अच्छी लगती है. ओके. फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पूछा तुझे क्या अच्छा लगता है, आइसक्रीम और कॉफी? तो अब वो रिस्पॉन्ड करेगा आई लाइक आइसक्रीम. तो ये क्या था? एक इंटरेक्शन कि जहां मैं अपनी फीलिंग्स बता रही थी और मेरे फ्रेंड ने मुझको बताया जब उससे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा. ऐसे ही पाइथन में जब मैं कमांड लाइन में जाकर पाइथन टाइप करूंगी और एक इंटरेक्टिव कंसोल ओपन होगी, मैं वहां बोलूंगी A is 20, पाइथन विल गिव अ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, देन I will say B is 30, तो Python will give a next prompt. Then क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई क्वेश्चन भेजा ही नहीं है तो प्रॉम्प्ट देता रहेगा. फिर मैं बोलूंगी A plus B, तब Python will reply me back A plus B means 20 plus 30 that you decided the value, it's 50. तो ये क्या है? हमारा इंटरेक्शन है.
बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने ऐसे नहीं देखा, हमने क्या देखा, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, फाइल रन करते हैं, आंसर आता है. बट हियर आई कैन चेक माई सिंटेक्स, I can test few codes, or I can just, instead of writing a complete file for a smaller program, I can just interact with the Python interpreter on a console. So it's an interactive language. It is object-oriented scripting language. How it's object-oriented scripting language? Because it supports object-oriented features like classes, objects, inheritance, encapsulation, abstraction, and etc. It is easy to learn. As I said, its syntax are very easy to understand. It has very few keywords and it has very few lines of code. So it is easy to learn and easy to understand. What are advantages of Python? As I already said, it has less line of code. The code which can be take 16 lines in C program, it can be completed in 10 or 12 lines in Python. So complexity is reduced in Python. Then it is cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintosh. अभी मैंने अपना प्रोग्राम Windows पे लिखा है, तो my program is also supported at where Unix or Macintosh. It is extendable. I can increase the functionality of my program by adding different modules into my Python program. Advantage of Python, it also supports databases. Then if you want to install Python interpreter on your PC, just download the Python interpreter from this given link. Running Python. How can I run my Python programs? One way is interactive interpreter, which we discussed कि command prompt में जाके, command line में जाके I can interact with one-to-one commands. Then comes script from the command line. Like other programs, you can run a complete script from the command line. हमारा अभी इंटरैक्टिव मोड में क्या किया था, मैंने कमांड लाइन में गई थी, कमांड लाइन में जाकर मैंने पाइथन टाइप किया था, मेरी इंटरैक्टिव कंसोल खुल गई थी. बट इफ आई हैव टू रन कंप्लीट स्क्रिप्ट, देन व्हाट आई विल डू, मैं कमांड लाइन में जाऊंगी, वहां खाली पाइथन लिखने की जगह पाइथन script.py, स्क्रिप्ट मेरी .py मेरी फाइल है. फॉर एग्जाम्पल पाइथन ims.py, तो मेरी पूरी की पूरी फाइल रन हो जाएगी. बट कंडीशन, पाइथन इंटरप्रेटर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी. देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आजकल आईडीज अवेलेबल है. जैसे आपने सी में टर्बो सी देखा था, वो एक आईडीई है. ओके, जावा में नेटबीन्स यूज होता है. ऐसे ही पाइथन की भी आईडीई है. जब आप पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक आइडल नाम की आईडीई आ जाती है. इसके अलावा और भी आईडीई है. फॉर एग्जाम्पल Anaconda. Running Python in interactive mode. We have already discussed what is interactive mode. Here on the screen I have a screenshot how interactive mode was started. It is like I have wrote Python on my command line, and here you can see triple angular brackets, which means command prompt. Then first Python programming, interactive mode programming. As I said, we can write short programs using interactive mode. Here is the example. Here I have written a very small program just consisting of one line, that is print welcome to the IMS live session, and interpreter has given the output welcome to live session. First Python program using script mode programming. To write a script, you have to open a notepad file, and in a notepad file you have to write your whole program and save the file with filename .py extension. Here I have created a notepad file which name is test.py, and it has a content print welcome to the IMS live session. Here you can see the screenshot that I have get into myself into the D drive. In D drive I have explored the session BTech IMS CS department live session, and after that I have write python test.py, and you can see that just next line which has the output welcome to the live session. यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने just python जहाँ मेरी test.py फाइल थी उस डायरेक्टरी में मैं गई हूँ, उस फाइल को मैंने एग्जीक्यूट किया है यूजिंग पाइथन कमांड, और कमांड एग्जीक्यूट करते ही नीचे आउटपुट आ गया है. ऐसे ही हमने लास्ट वाली स्लाइड में क्या किया था, हमने लास्ट वाली स्लाइड में इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फाइल डायरेक्ट वहीं पे कमांड लिख दी थी प्रिंट वेलकम टू द IMS लाइव सेशन, और यहाँ हमने अपनी फाइल में लिखा है वेलकम टू द IMS लाइव सेशन. देन नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है, किसी भी चीज के बारे में बात करना है, किसी भी चीज पे ऑपरेशन करना है, तो उस किसी भी चीज को
आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग वेरिएबल्स। अब आपने वेरिएबल तो यूज कर दिए हैं, बट इस वेरिएबल की इस टाइम क्या वैल्यू है वो कैसे पता लगेगी? जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो उन्हें एक मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज। मीन्स व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। अगर आपको किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो यू हैव टू यूज सिंपली इक्वल साइन, नेम ऑफ वेरिएबल, इक्वल साइन and the value. Here are the example. Counter is equal to 100 and integer assignment. Unlike C programming, you don't have to explicitly declare whether it is int, it is character, it is string, it is array or what. Python can itself understand the type of value and can give a memory according to the type of value. Here you do not need explicit declaration, right? Like you don't have to write int counter is 100. You have to just write counter is equal to 100. So really it's a very easy language, since you don't have to get confused about different data types, whether it is int, it is long, it is float and all. So counter is 100 is an integer assignment that Python interpreter will understand itself. Miles is 1000.0 floating point है, ये भी interpreter समझ जाएगा. You don't have to write float. Miles is 1000.0. Name is zone. Multiple assignment. We have almost seen this thing that a is equal to 1. इससे क्या हुआ? एक को वैल्यू असाइन हो गई बट 1. बट अगर 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स को सेम वैल्यू जानी है तो why should we create different memory locations and waste our memory कि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो मैं ये सारे a b c एक ही मेमोरी एड्रेस में क्यों स्टोर ना करूं जब एक ही वैल्यू है ना? तो इट विल बी अ सेविंग ऑफ मेमोरी. सो a is equal to b is equal to c is equal to 1. हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर किन्हीं 3 वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है. हियर ऑल 3 वेरिएबल्स आर असाइंड टू द सेम मेमोरी लोकेशन और इन तीनों की मेमोरी लोकेशन भी सेम होगी. अगर आप किसी प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू इन a, b और c का एड्रेस फाइंड आउट करेंगे तो तीनों का एड्रेस सेम आएगा. यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू मल्टीपल वेरिएबल्स. आप एक ही लाइन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, लाइक गिवन इन द स्लाइड. A, B, C is 1.2, John. Here 1 will be assigned to A, B will be assigned with value 2 and C will be assigned with value John. Then coming basic operators. Obviously when we have variables we perform some operations on them. So we perform operations on them with the help of basic operators. Operators are the constructs which can manipulate the value of operands. With the help of operators, we can change the value of different operands. Operands are itself variables, functions, or they can be anything. Consider the expression 4 plus 5 is equal to 9. Here 4 and 5 are called operands. जो भी मतलब दो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, दे आर ऑपरेंड्स. एंड जो भी ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड, इट इज कॉल्ड ऑपरेटर. Types of operator. Python supports following types of Python operators: arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, identity operators. Arithmetic operations, as the name suggests, here we have to perform arithmetic operations like plus, minus, multiply, divide, modulus. Comparison operators mean comparison. Is it equal? Is it greater? Is it less than? Is it greater equal to? Is it less than equal to? Is it not equal to? Assignment operator means how the value is assigned. A is equal to 6. Here is equal to is assignment operator. You must have also seen A plus is equal to 6. Plus is equal to is an assignment operator. Here A plus is equal to 6 means A is equal to A plus 6. Okay. Bitwise operators, since computer does everything in terms of bits, so bitwise operators are also present for their operations. Membership operators lets us know whether this particular object belongs to this particular thing. For example, I have a list of cars, different cars, Mercedes, Santro, i20, and I check if i20 is a member of car, so it will say yes. And if I say Baleno is a member of this car, it will say no. I have defined a list. I have defined an item to a list.
different items to a list, and membership operators check if this item is a part of list or not. It's not compulsory that it will be a list. It could be anything. It could be a tuple, it could be a string, it could be a dictionary. Identity operators are the operators which lets us know whether these two operands have these two variables have same ID or not, they have same memory location or not. Data types. The data stored in memory can be of many types. For example, person's age is stored as numeric value, as I've already told you that you need not explicitly mention that it is int, it is float, etc. So it has different data types. You cannot say that Python do not have different data types. It has, but you do not have to explicitly mention. Following are the 5 standard data types that Python have: numbers, string, list, tuples, and dictionary. Numbers. Number data type, as the name suggests, is a numeric value. Variable 1 is equal to 1, variable 2 is equal to 10. Strings. Strings क्या होता है? It is a collection of different characters which these characters are situated at contiguous memory locations. If we have to find out which particular character is present at which location in this string, what we can do? We can use the concept of indexing and slicing. Like array, string also have indexes as first character is given as index 0 and last character in Python is given as index -1. If you know that you have a string of size 6, then you can say last index will be 5. But if you do not know what is the size of a string, how will you access the last element? You can access the last element by calling it as -1. The plus sign is string concatenation. If you want to concatenate two strings, if you want to join two strings, then you have to use plus operation. And if you want to repeat the two strings, you can use the multiplication operator. Plus sign and multiply sign. String concatenation. If I have a string 1, which means Shalini, and string 2, which is Mittal, and if I write like string 1 plus string 2, Shalini plus Mittal will give me Shalini Mittal, string concatenation. And if I have a string 1 is Shalini and I write it as Shalini into, that is asterisk, into 2, this will print Shalini Shalini. Into 2 means repeat 2 times. Here you can see some examples. String is hello world. If I type print string, so what will happen? Whole string will be printed. If I write print string 0, 0 index पे जो character है, this will print H. If I write 2:5, print string 2:5. Here this is called slicing, and it is different from indexing in the term that 2 to 5 means starting from third character to fifth character. So what will be printing? Third character is LLO. Third, fourth, fifth. LLO will be the output. Print string 2 colon and last में just bracket close. It means 2 के बाद जितने भी characters हैं उन सबको print कर दे. स्लाइसिंग में जो हमारा कॉलन से पहला वाला कैरेक्टर होता है, पहले वाली इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद वाले कैरेक्टर से हम काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 2:5 मींस सेकंड कैरेक्टर के बाद वाला, दैट इज थर्ड कैरेक्टर से फिफ्थ कैरेक्टर तक. स्ट्रिंग 2 आगे कुछ भी नहीं है, मतलब सेकंड के बाद सब कोई. प्रिंट str/2 मींस स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड 2 बार हो जाएगा. str प्लस टेस्ट, स्ट्रिंग जो है उसमें टेस्ट प्लस कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो, तो आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड test. The next variable is list. List is similar like arrays, but arrays used to have a same data type. All items used to have same data type, but this is not a restriction in a list. You can have different elements, different items, and they can be of any data type. Lists are enclosed in square brackets. Like if I have 5 items in a list, these 5 items will be enclosed in a square bracket with separated with comma. Okay. List items are accessed using the square brackets. अगर लिस्ट में आइटम्स को एक्सेस करना है तो वही इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा. All the operations are
सेम है स्ट्रिंग, दैट इज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन. जैसे अभी हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सेस यूज किए थे कि फर्स्ट वाली को 0, लास्ट वाली को -1. स्लाइसिंग 2:5 की 2 के बाद से लेकर 5th कैरेक्टर. कॉन्केटिनेशन मीन्स प्लस को यूज करके हम 2 लिस्ट कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. रिपीटेशन, अगर हमें किसी लिस्ट को 2 बार प्रिंट कराना है तो लिस्ट का नाम दैट इंटू 2. ठीक है. और अगर हम एक कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कराते हैं तो जो आउटपुट है वो किसमें डिस्प्ले होगा? इनटू स्क्वायर ब्रैकेट्स. देन कम्स टपल्स. टपल्स भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होते हैं. डिफरेंस इज दैट कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी आइटम्स होती है लिस्ट की वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होती है, बट टपल्स की जो आइटम्स है वो पैरेंथेसिस में और वी कैन कॉल ब्रैकेट्स में स्टोर होती है. आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हो. यू कैन अपडेट द लिस्ट कि अगर आपको थर्ड एलिमेंट चेंज करना है लिस्ट में. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लिस्ट है नंबर्स की, उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5 स्टोर किया हुआ है. अगर मुझे थर्ड एलिमेंट चेंज करना है तो मैं बोल दूंगी कि लिस्ट 2 इज इक्वल टू 6. तो 1, 2, 6, 4, 5, 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 6. बट आप टपल्स में अगर रिप्लेस करोगे, टपल्स भी इंडेक्सिंग से ही मतलब वैल्यूज एक्सेस होती है, बट आप टपल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, बट टपल्स वैल्यू कैन नॉट बी अपडेटेड. ओके. Again, they have same operations like indexing, slicing, concatenation, and repetition. And the output, if you want to print the whole, tuple, it will be displayed in brackets. Difference between tuple and list, I have already told you that if you can see the red marked things, tuple is A, B, C, D 786, 2.23, John 70.2. Tuple are stored in brackets. List is stored in square brackets with these different values. I have written tuple index 2 is 1000. This means कि जो tuple का second item है उसको 1000 कर दो. tuple की second item क्या है? A, B, C, D 786, 2.23. tuple की second item है 2.23, उसकी जगह वहां 1000 कर दो. तो Python interpreter will throw an error because you cannot update tuple. List 2 is 1000, list में second item 1000 कर दो, तो list में A, B, C, D 786 के बाद क्या आ जाएगा? 1000. Then comes a dictionary. Dictionary is like a hash table. Dictionary में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होता है. डिक्शनरी को हम इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो भी आइटम्स हैं डिक्शनरी में स्टोर्ड हैं, जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल्स में क्या था, जीरो इंडेक्स पे जो आइटम थी वो 0 इंडेक्स पे थी, जो 1 पे थी आइटम वो 1 इंडेक्स पे थी. बट डिक्शनरी में ऐसा नहीं है. चीजें स्टोर्ड है बट कब क्या वैल्यू आए वो हम बता नहीं सकते. इट इज अनऑर्डर्ड. ओके. डिक्शनरीज के लिए भी हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स. एंड अगेन वैल्यूज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. व्हाट वैल्यूज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स? नॉर्मली हम इंडेक्सिंग फॉलो नहीं कर सकते, बट स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिख सकते हैं? की लिख सकते हैं. एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है. डिक्शनरी में डिक्शनरी 1, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक की ली है. यहाँ पर की क्या है? 1, और उसको वैल्यू क्या दी है? दिस इज 1. डिक्शनरी 2 ली, मतलब की क्या है इसमें? डिक्शनरी में एक की मैंने बनाई 2, उसको वैल्यू मैंने दी दिस इज 2. एक मैंने टपल बनाया है, सॉरी एक और डिक्शनरी बनाई है टाइनी डिक्शनरी. उसमें अगर आप देखोगे तो नेम जॉन, हियर नेम इज अ की एंड जॉन इज अ वैल्यू. जैसे अभी मैंने 1 और दिस इज 1 लिखा था, बोला था 1 की है, तो जैसे नेम यहाँ की है 1 वहां की था, और जोन जैसे वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या थी? दिस इज 1 की. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका मैं एम्प्लॉय हूँ शालिनी मित्तल, IMS अगर मेरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो वो की लेगा नेम, उसमें क्या वैल्यू डालेगा शालिनी मित्तल, उसमें वो बोलेगा किस डेजिग्नेशन पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो की होगी डेजिग्नेशन, जिसमें वैल्यू डलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सो ऑन. की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. ओके. अगर मुझे किसी भी मतलब डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, या तो डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो सकती है, या आप किसी डिक्शनरी का आइटम को कैसे प्रिंट करा सकते हो? बाय राइटिंग की इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड वैल्यू विल बी प्रिंटेड. Okay. Then another thing, data type conversion. Sometimes it is required that you have a value in int but you want to convert it into a string. Okay. So at that time what you will do?
you have a value in integer and you want to convert it in a string, there is a need, then you have to convert it. So this thing, converting one data type into another data type, is data type conversion. Here I have given an if here you can see I have a here you can see I have a value 7.3256. okay, value 7.3256. here it is a value, this value is float but I want to convert it into an integer. So what I have done, I have written an int टू ब्रैकेट्स और वैल्यू को किस में लिख दिया, वैल्यू को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है. तो जो भी वैल्यू मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगी उसके बाहर जो मेरा डेटा टाइप लिखा हुआ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. इंट 7.3256 विल कन्वर्ट 7.3256 इनटू एन इंटीजर एंड आउटपुट विल बी 7. In next example you can see that 4 is a string. How can we differentiate that 4 is a string or it is a number? If I have mentioned 4 without double quotes, it is integer. But if I have mentioned a is equal to double quotes 4, so it is a string. String is always stored in double quotes and numbers are stored without double quotes. If a number is written in double quotes, this means it is not a number, it is a string. But if I want to convert a string into an int, this is the way I can do. But everything cannot be converted into an int. For example, Ram एक string है which is not a which cannot be represented as a number. ठीक है, अगर मैं राम को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी तो कैसे हो सकता है, तो इट विल थ्रो एन एरर. उसके बाद मेरी एक स्ट्रिंग दी गई है, डोंट गेट इट कंफ्यूज दैट इट इज अ फ्लोट. 3.7654 here is a string because it is marked in double quotes. तो अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूंगी इस स्ट्रिंग को, तो ये नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि ये जो है एक फ्लोट है. पहले तो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मान के चल रहा है. अब जब इस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, फ्लोट निकलेगी. या तो ये फ्लोट होता तो ठीक है, बट इट कैन नॉट गो कि बहुत सारे पाथ्स फॉलो करे, ऐसा ये नहीं कर सकता है. ऐसा पाइथन इंटरप्रेटर नहीं कर सकता है कि 3.7654 स्ट्रिंग है और वो सिर्फ अगर वो बोल रहा है कि इंट में कन्वर्ट कर दो तो सिर्फ एक ही स्टेप होगा कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दो, वैल्यू क्या मिलेगी 3.7654, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्या आएगा, सिंटेक्स एरर. बट ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद से पहले फ्लोट में स्ट्रिंग को फ्लोट में करता है फिर फ्लोट से इंट में कर सकता है, ऐसा पाइथन इंटरप्रेटर बिल्कुल नहीं कर सकता है. सो आप किसी नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है फॉर टाइप कास्टिंग. इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी. सब अभी मैंने आपको बोला कि टपल को आप लोग अपडेट नहीं कर सकते. आई सेड कि बट अगर आपको टपल को अपडेट करना पड़ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, हाउ कैन यू अपडेट द टपल. हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से पहले टपल को लिस्ट बनाएंगे. कैसे, सपोज टपल का नाम है कंपनी, तो आप क्या करोगे, टाइप कास्टिंग यूज करोगे, लिस्ट ब्रैकेट में लिखोगे कंपनी, तो ये जो कंपनी टपल था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में. So students, we have covered some basic concepts of Python and now I want you all to attempt a small quiz of just 2-3 minutes and then we can proceed further. I would like to let you know all that in this live session we have organized 3 quizzes, quiz 1, quiz 2, quiz 3, which will help you to check your knowledge. All those who will complete the session and will give their quiz successfully will be awarded with an e-certificate. So I'm waiting here for the other 2 minutes. Please go and complete the quiz.
Students, your quiz is over. Now we will start with our next topic, decision making. What is decision making? Decision making is something which we make when some condition is satisfied. For example, you are a PCBM student and you have decided if you get good marks in maths, you will go to engineering, else you will go to medical field. Okay. Similarly, decision making में we have three type of statements: if statement, if else statement, nested if statement. If statement says मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि if you get above 90 marks in maths, then you will go for engineering. If statement क्या कहती है? Maths marks should be greater than 90%. If it is greater, then engineering. So it is if statement. If else statement क्या कहती है? If maths marks is greater than 70%, then engineering, else some other vocational course. Nested if statements. If we have so many if statements, if we have so if and buts, then we go for nested if statements. Here is a if statements. अगर if के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो जाती है, जैसे मैंने भी बोला मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 90% हो जाता है, तो इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है. अगर आप सिंटेक्स देखें, इफ एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट्स, इफ एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 70%. अनलाइक सी, यहां पर मैंने इफ के आगे लगाया है कॉलन. सिंटेक्स में क्या आता है? इफ के आगे कॉलन आता है. इफ एक्सप्रेशन कॉलन और फिर जो भी नीचे उसकी क्या है? स्टेटमेंट्स की. अगर ये चीज ट्रू होती है तो क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है. सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये पार्ट मेरा इफ ब्लॉक का है. बट पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इस चीज के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते, हम जस्ट इंडेंटेशन का यूज करते हैं. इफ के नीचे जो भी इफ वाली स्टेटमेंट्स हैं, जो इफ ट्रू होता है, जो जो एग्जीक्यूट करना है, वो हम क्या करेंगे? इफ के नीचे टैब देकर सबको इंडेंट करेंगे. देन कम्स एन एग्जाम्पल. यहां पर मैंने वेरिएबल 1 की वैल्यू ली है 100. इफ वेरिएबल 1, अब आप लोग सोचोगे कि वेरिएबल 1, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं दी, ग्रेटर या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं कैसे इसे वैल्यूएट करूंगी? यहां पर लिखा हुआ है var1 इज इक्वल टू 100. तो इफ var का मतलब, इफ var1 का मतलब ये है कि जो var1 है वो 0 तो नहीं है. मतलब अगर 0 नहीं है तो वो क्या वैल्यू हुई? ट्रू हुई. तो इफ ट्रू तो क्या प्रिंट हो जाएगा? गॉट अ ट्रू एक्सप्रेशन वैल्यू. और प्रिंट var1, तो प्रिंट var1 में क्या आ जाएगा? प्रिंट होगा 100. अब var2 0 लिया मैंने. इफ var2, इफ अब यहाँ var2 की वैल्यू क्या है? 0 है. 0 के अलावा 0 से कुछ भी बड़ा होता तो ट्रू होता, 0 या नेगेटिव वाली चीजें फॉल्स होगी. तो var2 0 है, मतलब var2 फॉल्स है. तो अगर var2, इफ var2 मीन्स इफ स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स. तो इफ के नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा क्या प्रिंट होगा? गुड बाय. देन कम्स इफ एल्स स्टेटमेंट. अभी तक हम कर रहे थे कि इफ ये ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करो, वो वाला पार्ट कि इफ ये ट्रू होता है वरना ये, वरना एल्स. अब इफ और एल्स में से एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ वाला पार्ट ट्रू है तो इफ के नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स वाला पार्ट ट्रू है तो एल्स के नीचे वाला होगा. दोनों एक साथ नहीं होंगे. पीछे जो हमने इफ स्टेटमेंट यूज की थी उसमें इफ के नीचे वाला ब्लॉक कोड यूज हुआ था और इफ के बाद निकल के जो भी कुछ था वो सब इवेल्युएट हुआ था, वो सब एग्जीक्यूट हुआ था. बट इफ एल्स में क्या होगा? एल्स वाला ब्लॉक भी होगा, इफ वाला भी ब्लॉक होगा, बट उनमें से कोई एक ब्लॉक होगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक होगा. The else statement could be at most only one else statement following if. if के साथ एक ही else आ सकता है. if के साथ एक ही else statement आ सकती है. अगर मैंने लिखा है कि if my maths marks is greater than 90%, I will go for engineering, else I will go for some other vocational course. अगर मेरे मैथ्स में 90 से ज्यादा है तो इंजीनियरिंग, वरना कोई दूसरा वोकेशनल. बट
इफ एल्स में सिर्फ एक ही एल्स ब्लॉक आ सकता है। बट अगर मेरे पास बहुत सारी कंडीशन हो, अगर मेरे मैथ्स में ग्रेटर देन 80% आए, तो मैथ्स में अगर ग्रेटर देन 80% आए तो मेरी पहली चॉइस इंजीनियरिंग है, और वो नहीं आए तो अगर मेरे बायो में 80% आए तो मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगा। अगर मेरे इंग्लिश में ग्रेटर देन 80% आए तो मैं आर्ट फील्ड में जाऊंगा। ठीक है, ऐसे अगर बहुत सारे आपके कंडीशंस हैं तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे? इफ के साथ एक ही एल्स हो सकता है, कितने फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एलिफ, कि अगर आपके एक इफ के साथ एक ही एल्स हो सकते हैं, बट अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं तो आप किसका यूज करोगे? एलिफ स्टेटमेंट का। इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 90, प्रिंट मैथ्स। एलिफ, अब इफ अगर मेरी ट्रू नहीं हुई तो एलिफ पे जाएगा। एलिफ की फुल फॉर्म एल्सिफ होती है। एलिफ अगर इंग्लिश इज ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट होगा आर्ट साइड। एलिफ अगर मेरी आर्ट में 80% से ज्यादा है तो क्रिएटिविटी साइड। एल्स, वरना मैं किस में जाऊंगा? कोई अदर वोकेशनल कोर्स। तो इन चारों में से अगर आप एलिफ कितनी भी हो सकती है, इट कुड बी 100 इवन, ओके। तो इफ एलिफ एलिफ एल्स, इन सब में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एक कंडीशन मुझे ट्रू मिलेगी तो मैं उस इफ एल्स ब्लॉक से एग्जिट कर जाऊंगी, ठीक है, और नॉर्मल कोडिंग पे आ जाऊंगी। देन कम्स नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशन के अंदर कंडीशन। अभी मैं कह रही थी कि अगर मैथ्स में 80% आया तो मैं ये करूंगी, अगर साइंस में ये आया तो ये करूंगी। बट अगर मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर मेरे मैथ्स में 80% आए तो मैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाऊंगी। मैथ्स में 80% है तो मैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स भी एनालाइज करूंगी। बट पहली कंडीशन क्या है मेरी? कि मैथ्स में 80% से ज्यादा होना चाहिए। तो इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन 80%, अब मैं क्या करूंगी? दूसरी कंडीशन लगाऊंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नेस्ट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं नेस्ट करने के लिए मैंने इसमें इंडेंटेशन का यूज किया है, ओके। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स होना, या बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स होना, या बहुत सारी इफ एलिफ स्टेटमेंट्स होना इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट्स। लूप क्या होता है? जब आप लोग कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करते हो तो मेनली क्या रहता है? सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इनफैक्ट अगर आप इफ पे भी आओगे तो इफ में कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको फिर लोअर पार्ट ही एग्जीक्यूशन होगा। बट अगर आपको टॉप पे जाना हो, आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स रहते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। व्हाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट करता है? जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहती है, कंडीशन ट्रू मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी ग्रोसरी है और मैं बोल रही हूँ कि मैं वो ग्रोसरी जो कोविड-19 है इसमें जो लेबर क्लास है उनके लिए यूज करूंगी। तो उनके लिए यूज करने के लिए मेरे पास ग्रोसरी होनी चाहिए और विद टाइम ग्रोसरी खत्म होती रहेगी। तो अगर मैंने कंडीशन लगाई व्हाइल ग्रोसरी इज ग्रेटर देन 100 kg, ग्रेटर देन 20 kg, गो टू लेबर क्लास फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज मेरे पास 100 kg ग्रोसरी है, मुझे एक बार लेबर क्लास के पास जाने के लिए 20 kg ग्रोसरी चाहिए। तो मैं गई व्हाइल लूप में, कि व्हाइल लूप चेक करेगा कि आपकी ग्रोसरी 20 kg से ज्यादा है। अभी मेरे पास 100 kg है, मैं कहूंगी यस, तो गो टू लेबर्स। और जब आप लेबर के पास जाओगे तो आपकी ग्रोसरी कितनी रह जाएगी? 100 से 80। फिर व्हाइल लूप पे जाओगे कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ कि नहीं, वो फिर से 20 चेक करेगा। तो कब तक आप लेबर क्लास के पास जाते रहोगे? जब तक आपकी ग्रोसरी 20 kg से ज्यादा रहती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप। जब तक कंडीशन मीट करती रहेगी तब तक हम चलते रहेंगे, ठीक है। देन कम्स फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। तो व्हाइल लूप का आप दे सकते हो सिंटेक्स है व्हाइल एक्सप्रेशन कॉलन, फिर नीचे जो भी व्हाइल ब्लॉक की स्टेटमेंट्स है उनको आप कैसे लिखोगे? विद इंडेंटेशन। व्हाइल लूप का आप ये की एग्जांपल दे सकते हो, काउंट मैंने 0 लिया हुआ है, जब तक मेरा काउंट लेस देन 9 है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब काउंट लेस देन 9 है तो प्रिंट क्या होगा? द काउंट इज 9। फिर काउंट क्या हुआ? सॉरी, द काउंट की करंट वैल्यू क्या है? 0, तो काउंट इज 0।
फिर काउंट मेरा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, काउंट इज 0 + 1 1, काउंट अब मेरा 1 हो गया, वापस से व्हाइल लूप पे जाएगा, कंडीशन दिखेगा काउंट 9 से लेस देन है, तो काउंट क्या प्रिंट होगा 1, फिर मेरा काउंट इंक्रीमेंट होगा 2, और कब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक वो 9 से छोटा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, द काउंट इज 0, द काउंट इज 1, द काउंट इज 2, द काउंट इज 3, द काउंट इज 4 5 6 7 8, और लास्ट में जब मेरा व्हाइल ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरी काउंट की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो वो चेक करेगा काउंट लेस देन 9 है, मैं कहूंगी नो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, गुड बॉय, गुड बाय। देन कम्स फॉर लूप। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि हर एक कैरेक्टर की इस स्ट्रिंग में क्या क्या कैरेक्टर्स है मुझे चाहिए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर लूप। तो फॉर लूप में इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें सी प्रोग्रामिंग की तरह नहीं होता है, इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है। फॉर एक वेरिएबल का नाम लेते हैं जो कि मतलब किसी स्ट्रिंग में किसी लिस्ट में आइट्रेट करेगा। फॉर यहाँ वेरिएबल मैंने लिया लेटर इन पाइथन, पाइथन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो मेरा लेटर एक वेरिएबल है जो पाइथन के इंडिविजुअल एलिमेंट के थ्रू आइट्रेट करेगा, ओके। तो फॉर लेटर इन पाइथन प्रिंट करंट लेटर लेटर, तो जब फॉर लेटर चला तो लेटर में सबसे पहली वैल्यू आई p, तो प्रिंट हुआ मेरा करंट लेटर p, फिर वापस फॉर लूप पे जाएगा, अब लेटर किस पे जाएगा, y पे जाएगा, तो करंट लेटर क्या हो गया y, ऐसी t h o n प्रिंट होंगे, और जब हमारे पाइथन में बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे तो ये फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो भी मैंने आइट्रेटिंग आइटम दी है उसके सारे एलिमेंट्स ओवर नहीं हो जाते, और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा गुड बाय, ओके। आप so here you can see fruits is banana, apple, mango. I have created a list of fruits consisting of 3 fruits, that is banana, apple and mango. You can iterate these fruits either by using the previous method, that is for variable in sequence, that उसमें हम ये लोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे for items in fruits। तो जब for लूप चलेगा यूजिंग वेरिएबल आइटम्स ऑन फ्रूट्स, तो आइटम्स में सबसे पहले क्या फेच होगा, बनाना, वही प्रिंट होगा, फिर एप्पल यूज होगा, एप्पल आएगा, एप्पल प्रिंट होगा, मैंगो आएगा, मैंगो प्रिंट होगा। बट देयर इज ऑल्सो एन अदर मेथड विच कैन बी यूज ओवर लिस्ट एंड टपल्स, वो है मेथड ऑफ रेंज। तो उसका सिंटेक्स क्या है, फॉर इंडेक्स इन रेंज। रेंज कैसे डिसाइड होगी, आइदर आप रेंज में सीधा नंबर लिख सकते हो 3 और 4 और 5, या फिर आपकी जो भी लिस्ट या टपल है उसकी लेंथ फाइंड करके आप क्या कर सकते हो, अपनी रेंज ले सकते हो। अगर मेरी रेंज 3 है तो जो मेरा आइट्रेटिंग वेरिएबल है वो कितनी बार चलेगा, आइट्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो रेंज अगर 3 है तो आइट्रेटिंग वेरिएबल को 3 वैल्यूज क्या मिलेंगी, 0 1 2। तो in this example I have used this range method for index in range length of fruits। तो range के ब्रैकेट्स में क्या वैल्यू जाएगी, लेंथ ऑफ फ्रूट्स इज 3, तो रेंज क्या है 3, तो इंडेक्स पहले 0 होगा, तो करंट फ्रूट इंडेक्स, तो फ्रूट्स का इंडेक्स क्या है 0, तो फ्रूट 0 पे क्या है, बनाना, फिर वापस जाएगा, दूसरी रेंज मिलेगी 1, तो 1 पे क्या है, एप्पल, एंड देन मैंगो। देन हियर कम्स नेस्टेड लूप्स। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स डिस्कस किया था, ऐसे ही ये नेस्टेड लूप्स है कि अगर हमारे को फॉर लूप के अंदर कोई फॉर लूप चलाना है तो वो होता है नेस्टेड लूप। कोई ऐसी कंडीशन आई कि जिसमें हमें 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे तो इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाता है 2 से लेकर 5 तक की टेबल प्रिंट करनी है, तो इसमें 2 लूप्स लगेंगे। एक लूप क्या करेगा, 2 से लेकर 5 की टेबल के लिए जो हम नंबर लेंगे उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, सपोज पहले नंबर लिया 2, जब 2 की सारी टेबल प्रिंट हो जाएगी तो 3 को करना पड़ेगा, तो दूसरे लूप में क्या होगी, 3 बन जाएगी वो वैल्यू, फिर 4 की टेबल के लिए वो वैल्यू 4 हो जाएगी। एक तो फॉर लूप ही होगा, प्लस वो जो टेबल में इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक चलेगी वैल्यू, उसके लिए हमारा दूसरा लूप लगेगा। ऐसी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो नेस्टेड लूप मींस लूप विद इन लूप्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, अभी हमने देखा कि लूप में जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक लूप
चलता रहेगा। बट अगर हमें कभी बीच में लूप को रोकना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीम डिसाइड कर रही हूँ, ठीक है, कि मतलब टीम में जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वालों को मैं लेती रहूंगी। बट मैंने सोचा कि टीम में जो भी नाम आएंगे, अगर उसमें सचिन नाम का कोई पर्सन आता है तो मैं अपना टीम सिलेक्शन सचिन को सेलेक्ट करके रोक दूंगी कि आई नो कि एक बंदा आया है सचिन, ही इज सेल्फ एफिशिएंट इन हिमसेल्फ। तो मेरा है कि लूप चला दूंगी कि जितने भी मेंबर्स आते रहेंगे, ठीक है, जब तक 10 मेंबर सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तो लूप वाइज चलता रहे और हर मेंबर मेरी टीम में आता रहे। बट अगर सचिन नाम का कोई मेंबर आता है तो वहां पर मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे किसी कंडीशंस के लिए कि लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है बट हमें लूप को रोकना पड़ता है, तो वहां पर हम दो तरह की स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। जो मैंने बताया कि अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अब मैं किसी का सिलेक्शन नहीं करूंगी, मतलब मुझे अब इस लूप से एग्जिट करना है, तो वहां मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करती हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगा है कि सचिन नाम का एक लड़का है, ही इज नॉट वेरी गुड, आई डोंट वांट टू सेलेक्ट हिम। तो मैं अपने लूप में कहूंगी जैसे ही सबको सेलेक्ट करता है, जैसे ही नाम मिले तो उस नाम को स्किप कर दे। तो क्या होगा, जब मैं फॉर लूप के अंदर मिल जाऊंगी, नेम इज इक्वल टू सचिन आएगा, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट करूंगी कि वहां पर सिलेक्शन की जगह वापस से लूप पे चली जाऊंगी कि और लोगों को भेजो, बट सचिन क्या होगा, स्किप हो जाएगा। ऐसी पास्ट स्टेटमेंट है। पास्ट स्टेटमेंट हम किस लिए मेनली यूज करते हैं कि पास्ट स्टेटमेंट से कुछ लूप के स्ट्रक्चर पे, कुछ लूप के कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लूप एज इट इज चलता है, बस अगर हमें कुछ टेस्टिंग वगैरह। So students, we have covered decision making and loops. Now I want you all to attempt quiz number 2. The link is given below. I'm waiting here for the other 2 minutes. Just go and attempt the quiz. So students, what is a function? A function is a block of organized, reusable code that is used to perform a single related action. फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि मेरा एक घर है, उसमें 6 रूम्स हैं। 6 रूम्स का हर एक का एरिया हमें निकालना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। तो मैं कैसे करूंगी, एरिया रूम 1 का कैसे कैलकुलेट करूंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया रूम 2 का कैसे कैलकुलेट करूंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया थर्ड रूम का कैसे करूंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देख रहे हो मैं इसमें रिपीटेटिव टास्क यूज कर रही हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज अलग अलग आ रही है ना। तो
इसमें क्या है, मुझे बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, आई वुड लाइक टू यूज फंक्शंस देयर, कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, फंक्शन में बोलूंगी एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ और सीधा एरिया प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, जब मैं बोलूंगी फंक्शन को कि एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हर रूम जब फंक्शन को कॉल करेगा तो उस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ कहाँ पास हो जाएगी, फंक्शंस में। तो दिस इज, ये तो छोटा सा एग्जांपल था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं जो रिपीटेटिवली थोड़ा थोड़ा ब्लॉक ऑफ कोड, फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन मैं किसी से पूछ रही हूँ, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर ग्रेजुएशन मार्क्स, 4-5 सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं हर बार हर पर्टिकुलर पर्सन से पूछने की जगह क्या करूंगी, एक फंक्शन बना दूंगी, और जब भी मुझे वो क्वेश्चंस पूछने होंगे मैं उस फंक्शन पे जाऊंगी, उस फंक्शन को कॉल करूंगी और मेरे पास वो फंक्शंस आ जाएगा। तो हमारा प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि ये मेरा फंक्शन ये चीजें वर्क करता है, और जब मुझे उस फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, जहां जरूरत पड़ती है वहां में हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये था, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बट कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे आप ये जो सारे फंक्शंस यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, टाइप कास्टिंग के आपने यूज किए थे, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनपुट फंक्शन आप यूज करते हो, ये सारी चीजें क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शंस है, रेंज फंक्शन, ओके। बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो अभी आपको मैंने लेंथ और ब्रेड्थ और सेट ऑफ क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया, दे आर यूजर डिफाइंड। तो हियर यू कैन सी द सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसमें एक कीवर्ड यूज होता है डेफ। डेफ के बाद फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होंगे, जैसे भी मैंने आपको बोला था हर रूम की लेंथ और ब्रेड्थ अलग होगी, तो वो लेंथ और ब्रेड्थ हर रूम की जो अलग अलग जाएगी वो पैरामीटर्स होंगे, और उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी फंक्शन में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जिसे हम फंक्शन स्वीट कहते हैं, वो आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेफ प्रिंट टाइम स्ट्रिंग, ये क्या एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट मी, उसमें हमने पास किया है पैरामीटर स्ट्रिंग। दिस प्रिंट्स अ पास स्ट्रिंग इनटू द फंक्शन। दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। ये कमेंट की तरह होती है जो कि एग्जीक्यूट नहीं करती है। आप देख रहे हो इस लाइन में ना कोई प्रिंट फंक्शन यूज हुआ है, ना कुछ चीज यूज हुई है, बस इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिख दिया गया है। दिस इज डॉक स्ट्रिंग और ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न। तो ये क्या है कि जो भी स्ट्रिंग इस फंक्शन में पास होगी वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और फंक्शन एग्जिट कर जाएगा। कॉलिंग अ फंक्शन, अगर मुझे किसी फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगी, आप देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में एक फंक्शन बनाया था प्रिंट मी, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास की थी। अगर अब आप लास्ट 2 लाइंस को देखो तो प्रिंट मी में मैं एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ और वो स्ट्रिंग अब क्या बन गई, पैरामीटर बन गई। वो पैरामीटर जब ऊपर वाले फंक्शन जहां डिफाइंड है वहां जाएगा तो प्रिंट स्ट्रिंग में क्या प्रिंट होगा, प्रिंट स्ट्रिंग में क्या प्रिंट होगा, आई एम फर्स्ट कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। और जब सेकेंड लाइन लास्ट लाइन जब जाएगी अगेन सेकेंड कॉल टू द सेम फंक्शन, प्रिंट मी फंक्शन में ये वैल्यू जाएगी, तो प्रिंट मी फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। देन स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो भी हम वेरिएबल्स फंक्शंस में डिफाइन करते हैं उनके 2 स्कोप होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, फंक्शन के अंदर होते हैं, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं और उनकी जो मतलब लाइफ है, यूसेज है, बस उस ब्लॉक के अंदर ही रहती है, वो हम बाहर यूज नहीं कर सकते। बट जो वेरिएबल्स हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम्स में करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। देन कम्स अ न्यू टॉपिक, मॉड्यूल्स। अभी हमने देखा फंक्शंस में क्या था, एक ऐसा कोड जो बार बार मेरे प्रोग्राम में यूज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हमें कोई एक ऐसा पूरा कोड है जो बहुत सारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है, फंक्शन में क्या था, एक ही प्रोग्राम में एक कोड बार बार यूज हो रहा है, बट अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स में कोई कोड बार बार यूज हो रहा है तो हर फाइल में मैं उस कोड को लिखने की जगह क्या करूंगी, एक सेपरेट स्क्रिप्ट बना दूंगी, एक सेपरेट पाइथन फाइल बना दूंगी और उस पाइथन फाइल को हर फाइल में कॉल करूंगी। जैसा कि आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा, #include stdio.h, conio.h, math.h, आप हेडर फाइल्स कॉल करते हो, लाइब्रेरी फाइल्स कॉल करते हो। ऐसे ही पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं कि अगर ये कोड मुझे बार बार हर प्रोग्राम्स में चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में चाहिए, तो मैं एक उसकी सेपरेट पाइथन फाइल बना देती हूँ और उसको बोलती हूँ मॉड्यूल, ओके। अगर मुझे अपने करंट प्रोग्राम में मैंने मॉड्यूल बना के रख दिया, अगर मुझे करंट प्रोग्राम में उस मॉड्यूल को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगी, बाय यूजिंग अ कीवर्ड इम्पोर्ट।
इंपोर्ट यूज करके मैं उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने मॉड्यूल बनाया एम्प्लॉय नाम से, और अगर मुझे अपने कंपनी प्रोग्राम में उस एम्प्लॉय मॉड्यूल को यूज करना है तो मैं लिखूंगी इंपोर्ट एम्प्लॉय। ओके, इसके अलावा एक और है इंपोर्ट के अलावा फ्रॉम इंपोर्ट। फ्रॉम इंपोर्ट में क्या करता है, अगर मुझे पूरी की पूरी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करनी है, उस मॉड्यूल में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस वेरिएबल का, उस फंक्शन का या उस लिस्ट का जो भी वो चीज है वो स्पेसिफाई कर दूंगी फ्रॉम जो मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जो मेरे मॉड्यूल का नाम है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम फिब इंपोर्ट फिबोनेकी, फ्रॉम फिब इंपोर्ट फिबोनेकी। तो इसमें मैंने क्या करा है, फिबोनेकी नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है फिब फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फाइल हैंडलिंग। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम कर रहे थे हर चीज अपनी स्क्रीन पे, मतलब जो भी हम चेंजेस कर रहे थे वो हमारी स्क्रीन पे हो रहा था, ठीक है। लाइक हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया, हमने इनपुट फंक्शन किया, या हम जो भी लिस्ट वगैरह स्ट्रिंग्स वगैरह ले रहे थे वो सारा हम एक स्क्रीन पे वर्क कर रहे थे। बट जब हमें फाइल्स पे वर्क करना हो, अभी तक हमने फाइल्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट द फाइल्स। इफ I want to have a change in file, if I want to create a new file, if I want to update a file, then what? मैं कैसे Python यूज करूंगी? तो उसी के लिए ये है फाइल हैंडलिंग। ओके, तो फाइल हैंडलिंग के लिए बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ कि मतलब अब जो मैं इस फाइल पे कुछ भी करने वाली हूँ, जिस फाइल पे कुछ भी करने वाली हूँ, तो उस फाइल के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक फाइल हैंडलर बनाना पड़ेगा, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैं उस फाइल को ओपन करूंगी उसका फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगी। यहां पर आप देख सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी फाइल ऑब्जेक्ट कुड बी एनी नेम, फॉर एग्जांपल file1, string1, एनीथिंग लाइक अ वेरिएबल। तो fh fo कुछ भी। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम और एक्सेस मोड। फाइल ऑब्जेक्ट के मैं जब इस फाइल के बारे में बात करूंगी तो इसी हैंडल के थ्रू करूंगी। ओपन, मैं ओपन कर रही हूँ, ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, फाइल का नाम, कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है। मेरे कंप्यूटर में मल्टीपल फाइल हो सकती है तो मैं उस फाइल का नेम इसमें लिखूंगी। एक्सेस मोड, की मुझे उस फाइल पे कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक है, उस फाइल पे मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, मुझे उस फाइल को रीड करना है, मुझे उस फाइल को राइट करना है, या मुझे उस फाइल को अपडेट करना है, तो वो मैं मोड यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। अगर मुझे रीड करना है तो मैं एक्सेस मोड लिखूंगी R, अगर मुझे राइट करना है तो मैं लिखूंगी W, अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं लिखूंगी अपेंड। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड? कैन आई नॉट राइट अ फाइल बाय जस्ट यूजिंग अ राइट? अगर फाइल एग्जिस्ट करती है और मैंने उस पर राइट मोड ले लिया तो मेरी पूरी फाइल ओवर राइट हो जाएगी, पुराना सारा डेटा चला जाएगा। बट मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा डेटा डालना है और पिछले वाला डेटा भी रहे, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, कौन सा एक्सेस मोड यूज करूंगी, अपेंड। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे, कौन सा मोड है वो स्पेसिफाई करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हमें जब भी फाइल ओपन करते हैं तो उसको फाइल क्लोज करना चाहिए, फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस फंक्शन, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन से। अब मुझे चेक करना है कि मेरी फाइल ओपन है या क्लोज है, तो मैं एक एट्रीब्यूट कर सकती हूँ फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पर फाइल क्या है, एक फाइल हैंडलर है। जैसे सपोज अगर मैंने फाइल हैंडलर का नाम FO लिखा होता तो मैं चेक करती FO डॉट क्लोज, अगर मेरी फाइल बंद है तो वो बोल देता है ट्रू, अदरवाइज वो बोल देता फॉल्स। फाइल डॉट मोड मुझे क्या बताएगा, फाइल डॉट मोड मुझे बताएगा कि मेरी फाइल किस मोड में ओपन है। फाइल डॉट नेम बताएगा क्या, कि मेरी जो फाइल है अभी इस टाइम ओपन उसका नेम। So students, let's see an example of handling a file. Here in this example, I have opened a file foo.txt in a write mode, and for this file I have created a file handler FO, or I can say it's a file object. Okay, जो फाइल का नेम मैं ओपन में मेंशन करूंगी ये हैंडलर उसी फाइल के लिए बनेगा, ठीक है। सो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल विच इज ओपन, आई कैन write print name of the file FO name. If my file is closed or not, I can write closed or not print FO dot closed. Here in this, since file is open, it will print true. Print
in write mode, the output will be write mode. Reading and writing files. So this was how to open a file, how to close a file, how, in which mode we are going to open a file. It was all. Now how to read a file, how to write a file. By using a write function, I can write my file. Here you can see I have opened a file foo.txt in a write mode, and I have written in this file by using a file handler fo.write function. And what I am going to write, Python is a great language. Then comes, after writing, I have closed the file by using fo.close function. If I want to read my file, I should read it in some string. I should read it in some variable so that I can print it what I have read. You can also read without giving the read string into a variable, but then you will not be able to know what you have read. So here it is, str is fo.read 10. Here what will be read? What will be read goes to variable str, and how many characters my file is going to read, how many characters of my file is going to read by file handler is 10 characters. fo.read 10 means 10 characters. प्रिंट रीड स्ट्रिंग इज str, तो जो भी हमने रीड किया वो कहाँ स्टोर हो गया, str वेरिएबल में. तो जो भी 10th कैरेक्टर तक फाइल रीड होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी. तो आउटपुट इट रीड स्ट्रिंग इज पाइथन इज. ऊपर मैंने फाइल बनाई थी foo.txt, उसमें पाइथन इज अ ग्रेट लैंग्वेज लिखा था. अब मैंने उसके फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स लिखे हैं. तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स इज python 6 कैरेक्टर, 7th कैरेक्टर इज स्पेस, 8th 9th कैरेक्टर इज और 10th character is again space. तो output string is Python is. Now renaming and deleting files. Till now we have covered the topics like how to open a file, in what mode we have to open a file, how to read a file, how to write into the file. But there are some other functions also for file, that is renaming a file and deleting a file. To rename and delete a file, we need the use of OS module. OS module is inbuilt module. As I said in starting that with the help of modules we can enhance the functionality of our program. So here we are enhancing the functionality of file handling by using the OS module. So OS module can rename and remove a file. Here we can see os.rename. Here we can see os.rename test1.txt, test2.txt. यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया है OS मॉड्यूल. अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने इंपोर्ट किया है OS मॉड्यूल. OS मॉड्यूल में से मैंने यूज किया है रीनेम फंक्शन को. अब मैंने OS मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो मेरा पूरा का पूरा मॉड्यूल आ गया, बट उस मॉड्यूल में से मुझे क्या चीज यूज करनी है वो कैसे बताएंगे. OS मॉड्यूल का नेम डॉट क्या यूज करना है, os.rename test1.txt, test2.txt. यहाँ पर test1 will be renamed to test2.txt file, and to delete a file we will use os.remove text2.txt. This will delete the file text2. Students, thank you very much for being with us in this live session. Now for your e-certificates, please attend the quiz 3 given below in the link. So if you have any query you can put as a comment and we will try to reply you back. So please like us and subscribe us for such videos. Thank you.